जूनियर कोलीग्स। 4 लोग हमारे जो हैं, इन लोगों ने इस लॉकडाउन जुड़ पीरियड में काफी कुछ सीखा। कितने लोग जुड़ रहे हैं? ये तो बताएंगी सरोज, मैडम सरोज यादव। प्रशांत। यस सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप को होस्ट भी हैं, पीछे आपकी मैडम भी दिखाई पड़ रही हैं। ये बताइए कि कुल कितने लोग जुड़े हुए हैं सरोज जी? सर अभी मैं बता रही हूँ सर। हाँ प्लीज। सर 64 जुड़ चुके हैं। 64? हाँ 58 जुड़ चुके हैं और अभी वेटिंग में अभी आप ही जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं लगातार। आपकी अच्छी है, मेरे ख्याल से अब शुरू किया जाए क्या? जी नहीं बस 2 मिनट से बस शुरू करते हैं हम लोग। सर इसमें टोटल 100 लोग जो है जुड़ते हैं इसमें जूम पे, और बाकी 300-350 के आसपास फेसबुक लाइव पे रहते हैं। अच्छा जी, तो काफी बड़ी ऑडियंस है आपके सामने। नहीं थोड़ा सुधर रहे तुम लोग। हेलो सरोज जी। यस सर। देखिए टाइम हमारे ख्याल से 4 बजने वाला है। जी सर, अब स्टार्ट करें हम लोग? हाँ, लोग जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहिएगा, लेकिन हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर लेना। ओके ठीक है सर। मतलब लेट अस बी इन टाइम। जी सर। Good afternoon to all of you. In this period of COVID-19 pandemic, new developments are adopted by all of us. In this time, students are engaged in online classes. Teachers are also engaged in taking online teaching learning programs. They are also very much interested for their professional development also. They are engaged in type of webinars, workshops, faculty development programs, etc. Likewise, teachers and students both are engaged in their research work also. In our department also today, 2 pre-submission viva has been occurred. 2 theses have been pre-submitted. So our topic is also webinar topic is statistical treatment of data by Professor Gupta sir, S.P. Gupta sir. So I request Professor Department of Education for the formal welcome of our participants on Zoom meeting as well as on Facebook Live. So virtual podium is over to you, sir. Professor Dhananjay Yadav, sir. Okay, thank you, Saroj ji. At the outset, I, on behalf of Department of Education, University of Allahabad, and on my personal behalf, heartily welcome the learned audience who are with us in this virtual platform. Among the audience, there are research scholars, students, faculty members, and senior faculty members as well. Therefore, all are heartily welcome in this academic venture. Today, we are going to hold the Education Webinar Series 4. 3 lectures have been already done on this forum. Friends, it is the audience whose active participation brings success of any such program. I welcome from the core of my heart Professor K.S. Mishra ji, Professor P.K. Sahu sir. Both of them have been former Vice Chancellors, University of Allahabad. Professor Usha Mishra ji. All the 3 have been the academic advisors of this webinar series. Without the blessings of our honorable teachers, late Professor R.S. Pandey ji, Professor P.C. Saxena sir, our senior colleagues, Professor Vidya Agrawal madam, Professor D.R. Singh, Professor Pratibha Upadhyay, Professor Sujata Raghuvansh, and Dr. Uma Rani Sharma, this series could not reach its fruitful end.
Today, we are going to have amongst us Professor S.P. Gupta, sir, on this forum. I heartily welcome you, sir. आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और निश्चित है कि आज हमारे जो ऑडियंस है उनको एक रिच एकेडमिक फूड मिलेगा. प्रोफेसर गुप्ता सर, we have been witnessing you as a teacher, as a senior colleague, as a good researcher, as an able administrator. I welcome you. Thank You have you. been the director of Institute of Correspondence and Continuing Education, and in your leadership, that institute flourished so much that there were 27,000 students enrolled at one time. Your leadership is also evidenced in UP RTOU, where you have taken enormous innovative projects, and the efforts that you have taken have directed towards the upliftment and giving new direction to the distance and open learning as such. सर, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है. यह आपका ही डिपार्टमेंट है. वर्चुअल फोरम पर आपको जब हिंदी में हम लोग बात करते हैं तो लगता है शायद ज्यादा स्वाभाविक हो जाते हैं. तो मन की बात है, आपसे हमने रिक्वेस्ट किया. आप अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका से वापस लौटे हैं. अभी आप इनफॉर्मली बात कर रहे थे कि द रिसोर्सेज दैट वी आर हैविंग amongst us, probably they were not up to that standard that is available in foreign countries, but with the effort of our younger colleagues, Dr. Akanksha, Dr. Ruchi, Dr. Saroj, Dr. Prashant, what they have learned during this COVID, this is the result of that particular effort that we have come on this webinar series. And I think the audience will get the well-needed academic food on this platform. Or the topic that Professor Gupta has taken is very much interesting to all the participants who are present, be the PG students, research scholars, even senior professors. They also need sometimes the guidance about how to treat the data that we have gathered. What is the nature of data? How we have to treat that data so that we can answer the research questions that the researcher has taken in this for his PhD work. Without taking much time, I heartily welcome you, sir, from the core of my heart. और आपको सामने देख करके नहीं लग रहा कि कहीं बहुत दूर हैं. You have been always with us. Thank you, sir. मैं शुरू कर नहीं सर, Thank you. 2 मिनट. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Prashant Stalin, who is also the convener of this webinar with me, for the introduction of Professor S.P. Gupta. Over to you, Prashant, sir. Okay, thank you, ma'am. Good evening to all, dear audience. I am Dr. Prashant Kumar Stalin, Assistant Professor, University of Allahabad. Today, it is a golden opportunity for us that a popular statistician in the field of education is with us to share his valuable thought on statistical operation in different educational settings. For research scholars, faculty members, learners, and good Ruberneck, it is essential to understand the critical knowledge of appropriate use of statistical treatment of data in research activities. Why and when we shall use the exact statistics in different situations. How to be careful with the use of inappropriate statistics in research. There are many confusions, problems, doubts related to the statistical treatment of data. You will be benefited from the answers to many questions related to the use of statistics. Dear audience, today
Our chief guest of this webinar is Professor S.P. Gupta. He is a renowned statistician. He discovered formula to estimate the reliability of test. Professor Gupta is an educationist with more than 35 years of experience in teaching, research, and academic administration. He is a former acting VC and director of School of Education UPRT, and also former director in Correspondence Education, University of Allahabad. His key contribution is to the field of education include investigating the state of education in India, shaping the concept of measurement and evaluation, and promoting education for all thoughts through online mode. He has published more than 30 books and more than 60 research papers, and served on several selection committees, educational board, and expert committees of UGC, NCT, DEC, etc. Professor Gupta has received several awards by the state and central government, including the Education Award by HRD, Minister of India, and Madan Mohan Malviya Award by the Prime Minister of India. I feel proud to be introduced and welcome you, sir, on the behalf of Education, Department of Education. Without taking more time, I request you kindly come forward and deliver a valuable speech on statistical treatment of data. Over to you, Professor Gupta, sir. ओके, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मैं इस वेबिनार में के आयोजनकर्ता शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष, उनके सभी सहयोगी, पूर्व सहयोगी और इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागीगण, मैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे कुछ बातें करूं। और खास तौर से मुझे ये लगता है कि प्रोफेसर यादव ने जिक्र किया कि मन की बातें लगती है जब हम हिंदी में करते हैं, और वैसे भी आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते रहते हैं, और इस समय भी उनकी 4 बजे से भी कोई राष्ट्र के नाम संबोधन है, उसमें भी वो मन की बात कुछ करेंगे। तो उस मन की बात के साथ साथ हम लोग भी आज थोड़ी सी सांख्यिकी की बात कर लें, स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम चर्चा कर लें। मैं बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस के बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में बहुत चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल उन सावधानियों की चर्चा करूंगा जिनको किसी भी रिसर्चर को ध्यान में रखना चाहिए जब भी उसे अपने डेटा का स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना हो। दरअसल रिसर्च का एक बड़ा भाग न्यूमेरिकल डेटा पर आधारित होता है। न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन के आधार पर जो डेटा मिलता है उसका एनालिसिस करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, तरीके कई हो सकते हैं, और उसके आधार पर नल हाइपोथेसिस या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का परीक्षण करते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के आधार पर रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जानबूझ के दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस, क्योंकि इन दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। और इस बात की प्राय रिसर्चर भी और रिसर्च गाइड्स भी ध्यान में नहीं रखते। वो समझते हैं कि हम केवल सीधे रिसर्च हाइपोथेसिस का परीक्षण करते हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का परीक्षण करते हैं, जो हमेशा नल फॉर्म में होती है, नल वर्सेज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की फॉर्म में होती है। और उस डिसीजन के आधार पर हम अपने रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी नल फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन नल भी हो सकती है, या डायरेक्शनल भी हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है, कोरिलेशनल भी हो सकती है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस की नेचर थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हमेशा नल हाइपोथेसिस के रूप में ही होती है
और जो हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम लगाते हैं उसके आधार पर हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का ही परीक्षण करते हैं, और उस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर हम अपने रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बात करते हैं, और उसके आधार पर रिसर्च हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के आधार पर हम अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। ये जो कंक्लूजन्स हमारे होते हैं हमेशा प्रोबेबिलिटी की टर्म में होते हैं। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो तुरंत हमारे सामने प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आ जाती है, और प्रायिकता के टर्म्स में ही हमारे निर्णय स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के होते हैं, और उसी प्रायिकता के टर्म्स में ही हम रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ये जो हमारा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है ये कभी भी व्यवहारिक या प्रैक्टिकल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं होता कि किसी परिकल्पना को हम व्यवहार में किस ढंग से स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारा निर्णय बाद में चल के अलग, ये पॉलिसी डिसीजन का काम होता है। जब हम रिसर्च का जो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, मैं डेटा कलेक्शन के ऊपर भी नहीं जा रहा हूं, डेटा कलेक्शन के बाद में हम रिसर्चर के सामने स्टैटिस्टिकल डेटा की एनालिसिस की बात होती है। वो जब डेटा की स्टैटिस्टिकल डेटा की एनालिसिस करता है तो प्राय एक सवाल सामने उसकी आता है कि किस स्टैटिस्टिकल टेक्निक का वो प्रयोग करे। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? हेलो? यस सर। हाँ सर, बिल्कुल आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। चला गया था इसलिए मैंने पूछी। यस तो उसके सामने प्रश्न आता है कि किस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का वो प्रयोग करे, और प्राय कभी कभी विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर्स और कभी कभी गाइड भी कहते हैं कि सर्वोत्तम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग करें, कोई बहुत ही एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग करें। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूं सभी रिसर्च स्कॉलर से, रिसर्च गाइड से, और जो मेरे सीनियर कोलीग्स हैं उनसे भी, कि मेरी अपनी नजरों में रिसर्च में किस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग किया जाएगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमें एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रयोग करनी है, बल्कि हमारे जो रिसर्च का टॉपिक है, हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी रिसर्च की हाइपोथेसिस हैं, उनकी डिमांड क्या है, वो किस स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की अपेक्षा करते हैं, ये हमें देखने की जरूरत होती है। कभी कभी बहुत सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हमारे रिसर्च की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकती है, और कभी हमें उसके लिए बहुत मॉडरेट टेक्निक की जरूरत होती है और कभी बहुत एडवांस टेक्निक्स की जरूरत होती है। और ये टेक्निक का जो मैंने कह दिया कि इनिशियल लेवल की टेक्निक, मॉडरेट टेक्निक और एडवांस टेक्निक, ये शब्द मैंने प्रयोग जरूर किए हैं, लेकिन ये प्रयोग का अर्थ ये नहीं है कि ये कोई वास्तव में इस तरह की टेक्निक है। इन शब्दों का केवल ये बतलाता है कि जो सिंपल टेक्निक है या इनिशियल टेक्निक्स है उनमें कैलकुलेशंस जरा कम होती है, किसी में थोड़ी ज्यादा होती है, किसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं। या तो ये इशारा देती है, या दूसरा इशारा ये देती है कि शुरू की कुछ टेक्निक्स का जो प्रादुर्भाव हुआ वो जल्दी हो गया और कुछ टेक्निक्स का प्रादुर्भाव बाद में हुआ। केवल इतना ही ये बतलाती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक एक साधन की तरह से है, जहां पे हमको सुई की जरूरत है वहां पर सुआ नहीं चल सकता, जहां पर छोटी पेच की जरूरत है वहां पे बड़ा पेच नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल टेक्निक की आवश्यकता क्या है, उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम में, रिसर्च प्रोजेक्ट में किस तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक को लगाना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। न कि इस तरह की बात हम सोचे कि एडवांस बहुत बढ़िया हो, बहुत सुपरफिशियल हो, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो, जहां पर डेटा की एनालिसिस केवल कंप्यूटर से ही हो सकती हो। इस तरह की बातों को हमको नहीं सोचना चाहिए। और इसे कभी कभी मैं बहुत ही हल्के शब्दों में उस तरह से कह देता हूं, ये कोई चाट नहीं है कि जिसमें जरा सा नमक और डाल दो, जरा सा मिर्च और डाल दो, जरा सा गरम मसाला और डाल दो, जरा सी चटनी और डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो और उससे चाट बढ़िया हो जाएगी। ये उस तरह की चीज नहीं है। ये केवल हमारी रिक्वायरमेंट का सवाल है कि क्या रिक्वायरमेंट हमारी डेटा जो डेटा है वो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम की क्या रिक्वायरमेंट है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की क्या रिक्वायरमेंट है, रिसर्च हाइपोथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट है।
उनकी दृष्टिगत रखते हुए हमको डेटा की एनालिसिस करनी है, डेटा के साथ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना है। ये पहली बात है। दूसरी बात एक और है कि डेटा की एनालिसिस में प्राय किस तरह की गलतियां करते हैं रिसर्चर्स, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कई बार हम बार बार कहते हैं, कभी कभी एक कहावत भी कही जाती है कि झूठ 3 तरह के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और सांख्य के झूठ। ये लाई 3 तरह के होते हैं, लाई, व्हाइट लाई एंड स्टैटिस्टिकल लाई। कहने का मतलब ये है, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी विधा के रूप में कुछ लोग प्रयोग में लाते हैं, उसी डेटा के आधार पर वो कुछ का कुछ रिजल्ट निकाल देते हैं जैसा चाहते हैं। अगर आप देखते भी होंगे इस समय कोविड-19 में भी, या जब इलेक्शंस होते हैं उस समय जो रिजल्ट्स आते हैं, चाहे प्री पोल रिजल्ट्स हों या पोस्ट पोल हों, उसमें भी हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटा को, उसी इंफॉर्मेशन को अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है। आज भी कोविड-19 में भी जो इंफॉर्मेशन आती है उसका इंटरप्रिटेशन पक्ष वाले कुछ और करते हैं, विपक्ष वाले कुछ और करते हैं, चीन कुछ और करता है, अमेरिका कुछ और करता है। तो ये सब चीजें, उसी डेटा वही है, सूचनाएं वही हैं, न्यूमरल्स वही हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन। तो इसलिए ये भी सावधानी की जरूरत है कि हमसे कहाँ गलती हो सकती है, उन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा में है, पहली गलती हमारे से अर्थमेटिकल एरर्स होती है या डेटा एंट्री की एरर्स होती है। जब हम आजकल डेटा कंप्यूटराइजेशन के द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर में डेटा की एंट्री करते हैं, तो डेटा की एंट्री करते समय आप कोई गलत एंट्री तो नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कई बार, अनेक बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं, मेरे अपने रिसर्च स्कॉलर्स के सामने सिचुएशंस आई हैं, वो डेटा एनालिसिस कंप्यूटर से करा के लाते हैं, रिजल्ट्स दिखलाते हैं, तो मैं कहता हूं कि नहीं, इसमें कुछ गलतियां हैं। वो कहते हैं नहीं सर, कंप्यूटर से डेटा एनालिसिस की है, यानी कंप्यूटर से जो कुछ हुआ है, अगर कंप्यूटर प्रिंट आउट वो ले आए हैं, मैं उसे बिल्कुल सही मान लूं, ये वो अपेक्षा करते हैं। जस्ट ए मिनट। उनकी मान्यता यह है कि कंप्यूटर का प्रिंट आउट वो हमेशा सही होगा। ऐसा नहीं होता, मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, इस डेटा में कुछ गड़बड़ है। तो 1-2 बार ऐसी भी स्थिति आई है कि डेटा एनालिसिस दोबारा उन्होंने करा ली कंप्यूटर से, तिबारा करा ली, चवारा करा ली, तब भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैं उन रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता हूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि रॉ डेटा को प्रिंट आउट लेके आइए, और फिर मैं उनसे कहता हूं इस रॉ डेटा को अपने डेटा से मिलाइए। तो देखते हैं कि डेटा एंट्री में ही बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसी तरह से जब कंप्यूटेशन हाथ से होती है, उस समय भी बहुत सारी गलतियां उसमें हो जाती हैं। कभी कभी एक्सेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ जो कंप्यूटर के अपने बनाए फॉर्मूलों का इस्तेमाल ना करके कुछ फॉर्मूले उसमें फीड करते हैं, उन फॉर्मूलों की फीडिंग में भी एंट्री में गड़बड़ हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, किसी तरह की डेटा एंट्री में या अर्थमेटिकल एरर्स डेटा के ट्रीटमेंट के दौरान नहीं होनी चाहिए। जहां पे स्क्वायर रूट निकलना है, स्क्वायर रूट ही निकलना चाहिए, जहां पे स्क्वायर होने हैं वहां पे स्क्वायर का ही जोड़ करना चाहिए, जहां पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी स्टैटिस्टिकल अर्थमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात इसमें यह है कि कोई भी चीज जो परसेंटेज बहुत सारे समय होते हैं, उन परसेंटेज को कंफ्यूजिंग परसेंटेज का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे समय हम परसेंटेज का, कंफ्यूजिंग परसेंटेज का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो रहा है। जैसे अगर पिछली बार किसी विद्यार्थी के अंक, एवरेज अंक या अंक 80 आए, इस बार 40 आए, हम कहने लगे इसके अंकों में 100% की कमी हो गई, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। 80 से 40 हुए हैं तो कमी 50% की हुई है, और जब 40 से 80 अगर होते हैं तो हम कहते हैं कि इंप्रूवमेंट 100% हुआ है, 40 में 40 और जुड़ गए। तो इस बात को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए।
कभी कभी हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, हम प्रिसीजन की बात करते हैं, फिक्सिशियस प्रिसीजन की। जैसे मोदी जी बार बार कहते हैं भारत की आबादी 130 करोड़ है, ये शब्द तो स्वीकार है, करने लायक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भारत की आबादी 130 करोड़ 55,70,275 है, तो ये झूठा, मिथ्या एक्यूरेसी है, झूठी एक्यूरेसी है। क्योंकि जब हमने लास्ट में 75 कह दिया, इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने, जब हम बात कर रहे हैं या जिस क्षण की बात कर रहे हैं, उस क्षण तक पैदा होने वाले सभी बच्चों को गिन लिया है और उस क्षण तक मृत्यु को प्राप्त सभी व्यक्तियों को उसमें से माइनस कर दिया है, जो कि ऐसा कभी संभव नहीं होता। या कभी कभी हम इस तरह से बात करते हैं छात्रों का मीन, हमने मीन कहा अचीवमेंट का मीन या हाइट का मीन, माना हमने 10th क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट का एवरेज निकाला और हमने कहा ये 140.597 है। तो ये 597 140 तक तो ठीक समझ में आ रहा है, उसके बाद का चलिए 0.5 भी ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद का 95 हमने और लगा दिया। इससे ऐसा लगता है कि हम फॉल्स एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। क्या हमने बच्चों की लंबाई को, ऊंचाई को इतने एक्यूरेटली नापा था? हमने उसे केवल सेंटीमीटर्स में नापा था और हम डेसिमल के 4 स्थान तक बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात को भी बेकार, ये अनावश्यक है। कभी कभी हम कुछ ग्राफ्स को, जीवित ग्राफ्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम बीच के कुछ एरिया को ग्राफ के को निकाल देते हैं, यानी या एक तरह से हम आर्टिफिशियल बेस तैयार कर लेते हैं। वो आर्टिफिशियल बेस की वजह से बहुत सारे ग्राफ्स जो कि पैरेलल लगने चाहिए, वो ऐसे लगते हैं अपवार्डेड या डाउनवार्डेड लगने लगते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग मैसेज कन्वे करते हैं। कभी कभी हम बहुत सारी कंपैरिजंस जो करते हैं, उन कंपैरिजंस को भी फॉल्स कंपैरिजंस करते हैं, फॉल्टी कंपैरिजंस करते हैं। तो ये फॉल्टी कंपैरिजन, जो चीज कंपेरेबल नहीं है उसको हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। एक इसमें बहुत बड़ी चीज ये है, वो तो सैंपलिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी इसमें आती है। एक और चीज है कि जो कुछ भी हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स पाते हैं, वो हमारे रिजल्ट्स हमेशा प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में होते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी भी उसको हमको एग्जैक्टली या डोमिनेटली उसके पे एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ही उनकी बात करनी चाहिए। एक स्टैटिस्टिक्स में बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, जो दो चीजें हैं, एक तो हम अनुपयुक्त सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, इम्प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक का प्रयोग करते हैं। हम यानी ना तो अपनी रिसर्च के पर्पज को देखते हैं, ना हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको देखते हैं, डेटा की नेचर को नहीं देखते, और हम बात करने उस टेक्निक को लगा लेते हैं। तो हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इससे भी बड़ी भयंकर एक स्थिति है कि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उस इंटरप्रिटेशन में हम सावधानी हमको रखनी चाहिए। मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन में किस तरह से गलतियां करती हैं। एक बहुत ही रिनाउंड व्यक्ति की पीएचडी थीसिस बुक फॉर्म में पब्लिश हुई, बाई चांस वो पढ़ने को मुझे मिली। मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लूंगा, मैं उस विश्वविद्यालय का नाम भी नहीं बतलाऊंगा कहाँ की वो थी। मैं केवल इतना कहूंगा, उन्होंने कुछ ग्रुप्स को कंपेयर किया था, जैसे मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स को कंपेयर किया उन्होंने। मेल माना 500 विद्यार्थी थे, मैं हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं ले रहा। 500 विद्यार्थी थे मेल, 400 विद्यार्थी फीमेल थे। उन्होंने एफ टेस्ट के द्वारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, आमतौर से आपने सुना होगा कि हम 2 से अधिक ग्रुप में करते हैं, लेकिन 2 ग्रुप में भी की जा सकती है। तो उन्होंने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रयोग किया, एफ टेस्ट का प्रयोग किया, और उन्होंने एफ वैल्यूज निकाली। और उस एफ वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन जब उन्होंने किया, तो उन्होंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या ली। बॉयज के लिए 500 में से 1 घटा दिया, 499,
और दूसरा 400 लड़कियों का था तो उसमें से एक घटा दिया 399, तो उन्होंने लिखा 399, 499 और इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आधार पर उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन कर डाला। पूरी थीसिस उनकी इसी आधार पर थी और उन्होंने 1.5, 1.7, 1.8 की एफ वैल्यूज को सबको सिग्निफिकेंट बता डाला और इंटरप्रिटेशन कर डाला। थीसिस लिख डाली, थीसिस अवार्ड हो गई, बुक फॉर्म में छप गई। तो मैंने जब देखा उसको तो मैंने कहा इसमें तो ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ टेस्ट के साथ 2 होती हैं, बिटवीन या अमंग द ग्रुप्स, जो कि नंबर ऑफ ग्रुप्स -1। यहाँ पर ग्रुप्स 2 थे तो 2 - 1 1 होगी और दूसरी होगी विदिन ग्रुप्स, तो वो 400 + 500 - 2 करके होगी, यानी 898। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी थीसिस ऐसी आती हैं जिनमें इस तरह की गलतियां होती हैं। तो हमको इस बात का देखने की जरूरत है कि जो भी हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनाएं वो ठीक हो, हमारा सैंपल प्रॉपर हो, यानी सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। हम जिन टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करके डेटा को कलेक्ट करें वो टूल्स एंड टेक्निक्स ठीक हों, ठीक ढंग से टूल ठीक भी हो और डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर भी ठीक हो, तरीका ठीक हो, ये भी है उसके लिए जरूरी है। और नेचर ऑफ डेटा को हमको देखकर कि क्या डेटा जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी एजम्पशंस को पूरा करता है, उसकी ध्यान में रखना चाहिए। फिर जो रिजल्ट्स आए उनका रिजल्ट्स का हम सावधानी पूर्वक की व्याख्या करें, स्टैटिस्टिकली उनको सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट कहने में सावधानी रखें, और साथ ही साथ जो कुछ भी बात हम करें वो बात हमारी प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ही होनी चाहिए। एकदम डेफिनेटनेस के बारे में हम कोई बात ना करें कि डेफिनेटली ये ऐसा होता है, बल्कि हम जब 0.05 लेवल की बात करें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, या 0.01 लेवल की, तो हम उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ही अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं। अब मैं आता हूं जो डेटा की एनालिसिस के बारे में। देखिए, डेटा की एनालिसिस को हम कई आधार पर जरा सा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हमारा एक आधार हो सकता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हमारे डेटा जो हमारे पास है जिसका स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हमको करना है। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है, कितने वेरिएबल्स हैं। तो हमारा यूनिवेरिएट डेटा है, बाई वेरिएट डेटा है, या मल्टी वेरिएट डेटा है। यूनिवेरिएट मतलब केवल एक वेरिएबल के ऊपर हमारा डेटा है, तो हमें कुछ और किन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का हम प्रयोग कर सकते हैं ये हमें देखना होगा। हम मीन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यूनिवेरिएट वाले तो कर ही सकते हैं, बाईवेरिएट के साथ में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको ये भी देखना होगा डेटा हमारा कैसा है। और अगर मल्टीवेरिएट डेटा है तो हम और तरह की थोड़ी सी एडवांस एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो हमें सब डेटा को देखना होगा कि जो डेटा कुल हमें अवेलेबल है वो डेटा किस तरह का है। दूसरा एक और है डेटा की इसकी नेचर क्या है, क्या ये डेटा किस स्केल पर, स्केल ऑफ मेजरमेंट पर ये डेटा कलेक्ट किया गया है, ये नॉमिनल डेटा है, ये ऑर्डिनल डेटा है, ये इंटरवल डेटा है, या ये रेशो डेटा है। हर लेवल की अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, हर टेक्निक को हम हर जगह नहीं लगा सकते। तो हमको ये देखना होगा कि कौन सा टाइप का डेटा है हमारा, उसके आधार पर हम देखेंगे। हमें डेटा में ये भी देखना होगा अगर हमारा इंटरवल लेवल का भी है तो ये कंटिन्यूअस नेचर का है या डिस्क्रीट नेचर का है, या इसमें फोर्स्ड कैटेगराइजेशन हमने किया हुआ है, ये ध्यान भी हमको रखना होगा।
दूसरा ये है कि जो डेटा है किसी भी एक वेरिएबल पर जो डेटा है, जो जैसे मैंने कहा यूनिवेरिएट डेटा है, अगर एक वेरिएबल के लिए, तो उस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, इस बात को हमको देखने की जरूरत है। और अगर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या वो लीनियर है, इसको हमको देखने की जरूरत है। और अगर वो लीनियर है भी तो क्या उसमें होमोसेडास्टिसिटी किस है या नहीं है, इसको भी हमको देखने की आवश्यकता है। तो ये हमको जरूरत है डेटा के बारे में। अभी डेटा के में एक ये भी हमको देखना होगा, जो हमारा डेटा आया है ये हमने केवल एक सैंपल से ड्रॉ किया है या एक ग्रुप के लिए ड्रॉ किया है या एक से अधिक ग्रुप्स के लिए ड्रॉ किया है, यानी 1 सैंपल डेटा है या 2 सैंपल डेटा है। अगर 2 सैंपल डेटा भी है तो क्या जो 2 सैंपल्स हैं या 2 ग्रुप्स हैं या 2 सेट ऑफ डेटा है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या वो रिलेटेड ग्रुप्स है। अगर 2 ग्रुप डेटा है या 2 सैंपल डेटा है तो रिलेटेड सैंपल्स तो नहीं है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। कभी कभी हमारे 2 ग्रुप्स हम बनाते हैं तो ग्रुप्स एक दूसरे के आधार पर या तो मैचिंग के आधार पर बनाते हैं, या एक ही ग्रुप से हम 2 बार डेटा कलेक्ट करते हैं, एक प्री टेस्ट एक पोस्ट टेस्ट के रूप में, या मैचिंग के आधार पर हम कलेक्ट करते हैं, या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को मैच करते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में। तो हमको इसका भी देखना होगा कि ये जो डेटा है हमारा तो एक ग्रुप से है या 2 ग्रुप से है। 2 ग्रुप के केस में वो रिलेटेड सैंपल्स हैं या अनरिलेटेड सैंपल है, इंडिपेंडेंट सैंपल है, स्वतंत्र सैंपल है, या 2 से भी अधिक ग्रुप्स हैं तो वो ग्रुप्स हमारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं या वो भी रिलेटेड ग्रुप से। ये भी एक हमारा एक कंसिडरेशन होता है डेटा की एनालिसिस के लिए। एक चीज और होती है कि जो डेटा की एनालिसिस करने के समय, ट्रीटमेंट करते समय हमको किस तरह की एनालिसिस की जरूरत है। क्या ये कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है हमको, यानी कुछ ग्रुप्स को हमें कंपेयर करना है सर्टेन वेरिएबल्स के ऊपर, या हमको रिलेशनशिप की एनालिसिस करनी है। ये कंपैरिजन की एनालिसिस बहुत सारी है, तरह तरह की है। 2 ग्रुप्स का है, मोर देन 2 ग्रुप्स का है, मोर देन 2 ग्रुप्स में बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो उसी केस में हम इंटरैक्शंस किस तरह का देखेंगे, कौन सा डिजाइन हम लगाएंगे, ये सब हो जाएगा। इसी तरह से रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप 2 वेरिएबल्स के बीच में देखेंगे, मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच में देखेंगे, 2 वेरिएबल्स में देखेंगे तो हमारा डेटा किस एजम्पशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसके आधार पर हम उसको डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिसर्चर को रिसर्च का डेटा एनालिसिस करते समय विचार करने की जरूरत है कि वो क्या करे और कैसे करे। ये करना बहुत आसान नहीं है, इसमें सो मेनी फैक्टर्स हैं जिनको उसको ध्यान में रखने की उसको जरूरत होती है कि वो उन सारी चीजों को ध्यान में रखे। मैं अब थोड़ी सी 2-4 चीजों के बारे में बतलाना चाहूंगा, केवल कहां पर क्या डेटा एनालिसिस हम आमतौर से प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो नॉमिनल स्केल का डेटा है, नॉमिनल डेटा जिसे मैंने कहा था, नॉमिनल डेटा में एक्चुअली जो इक्विवेलेंस के आधार पर ये डेटा हमें मिलता है, इसमें हम व्यक्तियों को कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं और वो कैटेगरीज इक्विवेलेंट कैटेगरीज होती हैं और उसमें केवल हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। और इसलिए कभी कभी हम उसमें फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं या कंटीजेंसी कोफिशिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस तरह के डेटा पर हम केवल नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स का प्रयोग कर पाते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट का प्रयोग हम नहीं कर पाते। तो ये दूसरा हमारा ऑर्डिनल डेटा होता है। ऑर्डिनल डेटा में जो कैटेगरीज तो हम बनाते हैं, लेकिन कैटेगरीज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के आधार पर होती है, यानी उन कैटेगरीज को एक सीक्वेंस में, एक हायरार्किकल ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं, छोटे से बड़े की तरफ हम अरेंज कर सकते हैं। और जो लोअर कैटेगरी में
लोअर लेवल पर जो कैटेगरी स्थित है उसमें वो पर्टिकुलर ट्रेड जिसके आधार पर वो कैटेगरी बनाई है वो कम होता है, उससे ऊपर की कैटेगरी में ज्यादा होता है, उससे ऊपर की कैटेगरी में और ज्यादा होता है। तो ये क्रमशः एक कैटेगराइजेशन चलता है। तो ये कैटेगरीज हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज की जा सकती है। तो इनमें जो है हम जो हमारे डेटा मिलता है उस डेटा की ट्रीटमेंट करते समय हम मीडियन भी निकाल सकते हैं, हम उसमें परसेंटाइल निकाल सकते हैं, हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकाल सकते हैं, हम कैंडल्स टाउ का प्रयोग कर सकते हैं, हम कैंडल्स डब्ल्यू कोरिलेशन निकाल सकते हैं। और ज्यादातर इस तरह के केसेज में भी जो हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा पाते हैं वो नॉन पैरामेट्रिक ही होते हैं। जो तीसरा डेटा इस रिसर्च में खासतौर से बिहेवियरल साइंस की रिसर्च या एजुकेशन की रिसर्च में होता है उसमें हमारा वो होता है इंटरवल डेटा, यानी इंटरवल लेवल पर उस डेटा को हमें प्राप्त किया होता है। और इसमें जो है किन्हीं भी दो इंटरवल्स के बीच में की जो रेशो होती है वो नोन होती है, वो रेशो ज्ञात होती है। और इसलिए जो है इसको इंटरवल स्केल के नाम से कहते हैं कि नोन रेशो ऑफ एनी टू इंटरवल्स। और इस केस में यही डेटा हमें ज्यादातर मिलता है, लेकिन इसमें ट्रू जीरो की जरूरी नहीं है कि ट्रू जीरो एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम मीन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह के डेटा के साथ हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि सैंपल्स को जो हमारे 1 सैंपल टेस्ट और 2 सैंपल टेस्ट की हम बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि केवल 1 सैंपल केस है हमारा, जिस डेटा को ट्रीटमेंट करना है, हमको स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना है जिस डेटा का, वो उसका है। तो 1 सैंपल टेस्ट में आमतौर से किसी एक सैंपल से को जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है, डेटा मिला है, उस डेटा को किसी फिक्स्ड मॉडल से हम कंपेयर करते हैं। जैसे कभी कभी हमको ये देखना होता है कि हमारा जो किसी वेरिएबल पर जो स्कोर्स हमने प्राप्त किए किसी एक सैंपल से, क्या वो स्कोर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुरूप है या नहीं है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक थ्योरेटिकल या फिक्स्ड मॉडल हो गया, थ्योरेटिकल मॉडल हो गया। और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा जो डेटा हमने गैदर किया है किसी मेजरमेंट टूल को एडमिनिस्टर करने के बाद किसी सैंपल पर जो डेटा आया है, क्या ये डेटा को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इस तरह की जो सिचुएशंस होती है उसमें हम कहते हैं 1 सैंपल टेस्ट है केस है ये, और इसमें हम डेटा को टेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हम जैसे बाइनोमियल टेस्ट, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है तो उसे लगा सकते हैं। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करना है तो हम कोलमोग्रोव सिमिरनोव टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक सैंपल के केस में कभी कभी हमें ये देखना होता है कि हमारा जो सैंपल है ये रैंडमली सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में हम रन टेस्ट लगा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जहां पर हम सैंपल को रैंडमली ड्रॉ किया है नहीं किया है, क्योंकि ये कभी कभी ये प्रश्न होता है ये सैंपल रैंडमली, तो अब जैसे सैंपल रैंडमली ड्रॉ है या नहीं है ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रन टेस्ट। तो ये हम 1 सैंपल टेस्ट में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को या जो स्कोर्स हमारे पास आए हैं उनको हम इस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। इस कभी कभी एक सिचुएशन ये हुई। दूसरी सिचुएशन है हमारे पास 2 सैंपल्स हैं, यानी अब 2 सैंपल है। हाँ, आपका एक सवाल ये सरल सा हो सकता है कि क्या 1 सैंपल केस में हम किसी स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से के लिए पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते। नहीं, हम टी टेस्ट और क्रिटिकल रेशियो टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। क्रिटिकल रेशियो टेस्ट या
जेट टेस्ट जिसे भी बोलते हैं आप, या टी टेस्ट को भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो हम ये देखने के लिए ये किसी फिक्स्ड वैल्यू से, यहाँ पर दोनों मीन वो नहीं है कि दो ग्रुप के मीन है, मीन 1 मीन 2, बल्कि यहाँ पर मीन एक है और दूसरा कोई फिक्स्ड वैल्यू है, और हम ये देखना चाहते हैं ये इससे कितना डेविएट कर रहा है। उस स्थिति में भी हम ये टी टेस्ट और काई स्क्वायर टी टेस्ट और जेट टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए संभव। अच्छा, कभी कभी हमारे पास दो सैंपल होते हैं जैसा मैंने कहा था, और उसकी दो सिचुएशंस मैंने बतलाई थी। टू इंडिपेंडेंट सैंपल, यानी वो सैंपल बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई भी जिन व्यक्तियों से वो डेटा आया है वो दोनों किसी एक में हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता, और उसकी हमने कोई इक्विवेलेंस भी निर्धारित नहीं की है। इसको भी हमको देखने की जरूरत होती है। तो वहां पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट के रूप में हम टी टेस्ट और जेट टेस्ट का उपयोग आमतौर से करते हैं, और मेरा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के रूप में हम बहुत सारे हमारे पास टेस्ट हैं। हम मीडियन टेस्ट भी लगा लेते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट भी लगा लेते हैं, कोलमोग्रोव सिमिरनोव टेस्ट भी लगा लेते हैं, वाइल्ड वॉल्फ लन टेस्ट भी लगाते हैं, मोजिस टेस्ट ऑफ एक्सट्रीम रिएक्शंस भी लगा सकते हैं, रैंडमाइजेशन टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये बहुत सारे टेस्ट हमारे पास है। जैसी की आवश्यकता है और हमारा जो पर्पज होगा उसके हिसाब से हम उन टेस्ट को चूज करेंगे। कोई भी टेस्ट, ये टेस्ट लगाना है इसके आधार पर नहीं हमको काम करना है, हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक पहले डिसाइड नहीं करनी है, बल्कि जैसी हमारे रिसर्च के पर्पज हैं, जैसे हमारे डेटा है, उसके आधार पर हमें अपने टेस्ट को डिसाइड करना है और तब उसके हिसाब से लगाना है। दूसरी चीज एक और है कि तीसरी, टू रिलेटेड सैंपल्स, जो टेस्ट सैंपल एक दूसरे से रिलेटेड हो, और इस तरह के टू रिलेटेड सैंपल की केस में मैंने 3 सिचुएशंस बतलाई थी। या तो एक ही ग्रुप से 2 बार प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के रूप में डेटा लिया गया हो, या दो ग्रुप्स हमने बनाए हैं वो मैचिंग के आधार पर बनाए हों, या तीसरा 2 ग्रुप्स जो बनाए हैं उसमें 1 by 1 मैचिंग ना करके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के आधार पर इक्वेट करके हमने 2 ग्रुप्स को इक्विवेलेंट ग्रुप्स के रूप में फॉर्म किया। वहां पे पहले वाले केस में 1 by 1 मैचिंग करके हम बनाते हैं, दूसरे वाले केस में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के आधार पर हम इक्विवेलेंस निर्धारित करते हैं। उस स्थिति में भी जो पैरामेट्रिक टेस्ट है हमारे दो ही खास तौर से है, टी टेस्ट और जेट टेस्ट। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास साइन टेस्ट है, विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर टेस्ट है, वाल्स टेस्ट है, रैंडमाइजेशन टेस्ट है, मैकनीमार टेस्ट। ये टेस्ट हम इसमें लगा सकते हैं। ये टेस्ट हर टेस्ट नहीं लग सकता, कहां पर कौन सा टेस्ट लगेगा ये अगेन हमारे नेचर ऑफ डेटा के ऊपर है, और तीनों में से किस आधार पर हमने ग्रुप्स बनाए हैं। मैचिंग, एक ही ग्रुप से 2 स्कोर लिए गए हैं हर इंडिविजुअल से के लिए, एक ही ग्रुप के हर इंडिविजुअल्स के लिए 2 स्कोर है, या मैचिंग के आधार पर ग्रुप्स 1 by 1 मैचिंग के आधार पर लिए गए हैं, या हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर बनाए हैं। तो उसके हिसाब से ये टेस्ट, अलग अलग टेस्ट का प्रयोग इसमें हम करेंगे। इसके बाद अगली बात है कि जब हमारे पास 2 से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, 2 से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप होने पर हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, या उसे हम एफ टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें एफ स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एफ टेस्ट भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस भी है, 2 से अधिक ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का प्रयोग करते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम काई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं, हम एक्सटेंडेड मीडियन टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, हम क्रुस्कुल-वालिस 1 way एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बाय रैंक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। तो हमको इसमें भी कौन सा करना है, अगेन मैं वही बात कहूंगा कि हम क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से करना है।
आप ये कहेंगे यहाँ पर आप मीडियन टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन टू रिलेटेड सैंपल्स में आपने मीडियन की बात नहीं की। टू रिलेटेड सैंपल में मीडियन का मीडियन नहीं, काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट की एक एजम्पशन है। आमतौर से उनको हम पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन एक एजम्पशन है कि वो जो है सारी कैटेगरी जितने भी वर्ग बनेंगे काई स्क्वायर में वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, और टू रिलेटेड सैंपल्स में वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, इसलिए उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब अगला केस आता है हमारा, जब दो से अधिक ग्रुप्स होती है लेकिन वो रिलेटेड होती है, या तो वही मैंने कहा कि उनमें हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डेटा लिया है, या हमने जो है मैचिंग के आधार पर बनाया है, तो वहां पर भी हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। और या अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाएं तो कोचरन का क्यू टेस्ट एक आता है, एक फ्रेडमैन की टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बाय रैंक्स आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हम जो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, जिसे कहते हैं कंपैरेटिव डिजाइन्स में कर सकते हैं। अब दूसरा जो डिजाइन होता है वो रिलेशनशिप का डिजाइन होता है, कोरिलेशनल डिजाइन होते हैं। जब हमारे पास कोरिलेशन की जरूरत होती है तो उस स्थिति में हमारा सर्वोत्तम कोरिलेशन जिसे हम कहते हैं, जो बेसिक है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है, क्योंकि ये, लेकिन इसकी मान्यता अपने आप में जटिल है और आवश्यक है, नहीं तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही गलत हो जाता है, फॉल्टी हो सकता है कि इसमें दोनों वेरिएबल्स नॉर्मल भी होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर भी होना चाहिए, तभी हम इसको लगा सकते हैं। होमोसेडास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका प्रयोग करने से या इसके इंटरप्रिटेशन से हम को थोड़ा सा बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और इसके अलावा जब प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन नहीं हो सकता है तो वहां पर हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं, हम बाई सीरियल कोरिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं, पॉइंट बाई सीरियल है, टेट्राकोरिक कोरिलेशन है, 5 कोफिशिएंट्स है, मल्टीपल कोरिलेशन है, लेकिन साथ ही साथ एक कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी होता है, जहां पर कोरिलेशन लीनियर ना होता है, नहीं होता है, तो कर्व के फॉर्म में होता है, यानी कुछ समय बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है फिर घटता है, या वाइस वर्सा है, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो उसकी शेप डिफरेंट शेप की हो सकती है, यानी वो लीनियर ना होकर कर्व की फॉर्म में होता है, तो हम कर्वी लीनियर कोरिलेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। और कोरिलेशन में भी बहुत सारी उसके बाद की हमारी एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस हो सकती है, फैक्टर एनालिसिस हम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, कैनोनिकल एनालिसिस हो सकती है, पाथ एनालिसिस हो सकती है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में भी कोरिलेशनल टेक्निक में हम कंटीजेंसी कोफिशिएंट का प्रयोग कर सकते हैं, रैंक कोरिलेशन का प्रयोग कर सकते हैं, पार्शियल रैंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के जो कोरिलेशन की टेक्निक भी हमारे पास काफी सारी कोरिलेशन की टेक्निक्स भी हैं, जिनका प्रयोग हम जैसी जरूरत है। अब ये जो कोरिलेशन की जितनी टेक्निक्स की मैंने बात कही है, इनमें कौन सी टेक्निक कब करनी है डेटा की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हर टेक्निक की डेटा की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, और अगर उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर रहे हैं तब हम उस टेक्निक का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी लिए हमको ये सावधानी की जरूरत है। और जब डेटा का स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास एक उसके बाद एक बड़ी समस्या आती है कि क्या एरर्स की क्या संभावनाएं होती है। डेटा एनालिसिस में या डेटा के ट्रीटमेंट में, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में के आधार पर जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या होती है कि हमने क्या गलती की है। ये गलती को इसको हमको बहुत ही सावधानी के साथ देखने की जरूरत होती है। तो ये गलतियां दो तरह की होती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर ये है कि जब इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, जब हम शून्य परिकल्पना को वो सही होते हुए भी उसे हम निरस्त कर देते हैं,
तो ये टाइप 1 एरर कहलाती है, यानी शून्य परिकल्पना हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, लेकिन उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। जैसे हमारा अगर हमने 0.01 का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है और टी टेस्ट या जेड टेस्ट का हम प्रयोग कर रहे हैं, 2.33 की वैल्यू हमारी टी की आई या जेड की आई, हमने कहा नहीं, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल, तो हमने उसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें अगर वास्तव में वो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में तो ठीक है, लेकिन वास्तव में वो एक्सेप्ट होने लायक थी, और बाई चांस सैंपल के कारण, सैंपल फ्लक्चुएशंस के कारण हमारी वैल्यू 2.33 पे अटक गई और ये वैल्यू 2.58 को क्रॉस नहीं कर पाई, तो हमने जो है कह दिया कि ये रिजेक्ट हो गई है। या अगर इसी में हमने 2.33 की वैल्यू आई थी, अगर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लेवल लिया होता तो हमारी ये शून्य परिकल्पना एक्सेप्ट हो गई होती, वो रिजेक्ट हो गई होती। तो कहने का मतलब ये है, जब इस तरह की हम त्रुटि करते हैं उस स्थिति में वैल्यूज को एक्स में टाइप 1 एरर होती है, हमने गलती से नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको हमको एक देखना है। दूसरी होती है कि नल हाइपोथेसिस वास्तव में एक्सेप्ट होनी चाहिए थी और हमने उसे एक्सेप्ट नहीं की। नहीं, दूसरी चीज में टाइप 1 एरर में, टाइप 2 एरर में जो बीटा एरर कहलाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस की एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको भी देखने की जरूरत है। और परेशानी सबसे बड़ी ये है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, अल्फा एरर और बीटा एरर भी कहती है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम में चलती है, एक दूसरे के रिवर्स में चलती हैं। एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, दूसरी बढ़ती है तो पहली घटती है। तो इसलिए इन दोनों का तालमेल, इन दोनों को तालमेल बनाने के लिए केवल इतना ही सैंपल का साइज ही बढ़ाना सबसे अच्छा तरीका होता है कि सैंपल जितना बड़ा होगा उतने ही दोनों तरह की एरर्स की संभावनाएं कम हमारे में होती रहेंगी। तो इसलिए इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के समय कि हमारा सैंपल साइज सफिशिएंट रहे, और अगर सैंपल साइज बड़ा रहेगा तो एक साथ हम दोनों तरह की एरर्स को, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स को एक साथ कम कर सकते हैं। तो इसलिए बार बार ये कहा जाता है रिसर्च में, सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। ये मैंने थोड़ी सी बातें आप लोगों से कही। अब मैं चाहूंगा आप लोगों के कुछ ना कुछ प्रश्न भी होंगे। वैसे तो जो समय मुझे दिया था 5 बजे तक का वो हो गया, लेकिन फिर भी आपके कुछ प्रश्न होंगे, तो वो प्रश्न मैं चाहूंगा कि आप बतलाएं, जिससे कि मैं उन प्रश्नों के स्लाइड में आपके कोई मैंने अपनी बात मैं नहीं समझा पाया हूँ या कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो, क्योंकि अब बहुत दिन से मैं ना पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ, तो उसकी वजह से भी मुझे आदत भी नहीं है बोलने की। तो ये मेरी एक सीमा बनती जा रही है। तो बताइए आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, मैंने कोई बात स्लिप ऑफ टंग रहा हो। यस। हाँ, thank you so much, sir. Participants, you can ask question by raising your hand, or you can send your question chat box. थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए, थैंक यू। मैंने बहुत ही सरल भाषा और सरल बातों को ही बतलाया है। मैंने कोई स्टैटिस्टिकल जो जगलरी है उस पर मैं नहीं गया हूँ। मैंने ये आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। शैलेश कुमार, आपने हैंड रेज किया था क्या, प्लीज।
शैलेश कुमार पार्टिसिपेंट ने किया था। क्या प्रश्न मेरे पास आएगा? बतलाइए, आप बतलाइए। देवाशीष पॉल। मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आया है। जी सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक चीज का कंफ्यूजन है कि हम लोग कभी कभी सैंपल साइज डिसाइड करने के लिए कभी कैलकुलेशन करते, कभी कभी रैंडमली हम लोग सैंपल साइज डिसाइड कर लेते हैं। तो मतलब मुझे ये मतलब मैं जानना चाहता था कि सैंपल साइज हम लोग कैसे डिसाइड करें? आइदर हम लोग कैलकुलेट करके डिसाइड करें कि ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ देवाशीष जी, आपकी हाँ जी लिया है। हाँ जी। मैं आपको बतलाऊं, सैंपल साइज पहले तो ये है एक्सेप्टेबल एरर का लिमिट क्या है कि 5% एरर एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2% कर रहे हैं, 1% कर रहे हैं। एक तो इस बात को लेकर वो चलता है। दूसरा, जो वेरिएबल्स है उनकी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस क्या है, उसको लेकर चलता है। ये दोनों चीजें हमारे रिसर्च के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सैंपल साइज का फॉर्मूला बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के लिए है। जहां पर जैसे कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है, वो ये चाहता है कि 1000 अगर उसने कोई पार्ट बनाए हैं, उनमें केवल 2 में ही कोई त्रुटि रहे और त्रुटि का लेवल भी इस लेवल तक रहे, तो वहां पर तो सैंपल साइज की बात है। रिसर्च में सैंपल साइज का फॉर्मूला ये एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पुस्तकों में बहुत सारियों में दिया होता है, इसलिए हमें भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं कभी कभी अपनी पुस्तकों में, जिनसे हम व्यक्तिगत तौर पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम देते हैं। तो ये सैंपल साइज का फॉर्मूले से सैंपल साइज नहीं निकालना चाहिए। रिसर्चर को जितना बड़ा सैंपल वो डील कर सके केयरफुल्ली, उतना बड़ा सैंपल लेना चाहिए। और ये सैंपल डिपेंड इस बात पर करता है आप किस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं उनको। अब जैसे आप प्रिंसिपल्स के ऊपर सैंपल लेंगे तो आपका सैंपल साइज 500-700 का नहीं हो सकता। पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर अगर प्रिंसिपल्स के ऊपर सैंपल लेता है, या पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर अगर वाइस चांसलर्स के ऊपर स्टडी कोई करता है, उसके सब्जेक्ट्स वाइस चांसलर हैं, उसे वाइस चांसलर से इंटरेक्ट करना है, तो वो 10, 15, 20 को लेगा, तब उसे नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ही लगानी पड़ेंगी अगर न्यूमेरिकल डेटा आता है। प्रिंसिपल के केस में ज्यादा से ज्यादा वो 100-50 तक का, 100 का, 50 का, 70 का, 80 का, 150 का सैंपल ले सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स के केस में वो 500-700, 1000 का सैंपल ले सकता है। टीचर्स के केस में वो 400-500 का सैंपल टीचर्स का ले सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स का सैंपल लेना हो तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी है, तो अगेन वो जो है कम का सैंपल लेना उसे पड़ेगा, क्योंकि उनसे डेटा कलेक्शन में उसके सामने दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरे कहने का आशय केवल इस बात का ये है कि सैंपल साइज आप किसका ले रहे हैं उस पर आपको जाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको अपने सैंपल साइज को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा, दूसरी बात एक और है, डेटा आप किस तरह का ले रहे हैं। आप किसी टीचर से भी अगर कितने टूल्स आप भरवाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपकी व्यवहारिकता के ऊपर है, सैंपल साइज नहीं है। सैंपल साइज का असर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के रूप में पड़ेगा जब स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, पैरामेट्रिक लगा पाते हैं या नॉन पैरामेट्रिक लगा पाते हैं, और साथ ही साथ पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप देखिए आप टी टेस्ट भी लगाते हैं, आप देख रहे होंगे टी जितना बढ़ता, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितनी बढ़ती चली जाती है, जो रिक्वायर्ड टी वैल्यू है सिग्निफिकेंस के लिए वो कम होती चली जाती है। अगर टी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केवल 10 है तो वहां पर आपको शायद टी की वैल्यू 4-5 के करीब आवश्यकता होती है सिग्निफिकेंस के लिए।
लेकिन अगर 100-150 है तो वहां पर वो 0.01 लेवल पर जाते हुए 2.6 2.65 के करीब आ जाती है। और अगर 400-500 का सैंपल हो जाता है तो 2.59 2.58 आ जाती है। तो ये आपको इस बात पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए सैंपल साइज का फॉर्मूला मत कभी भी लगाइए, वो फॉर्मूला क्वालिटी कंट्रोल के लिए है, जहां पे आपने एक्सेप्टेबल एरर पहले डिसाइड कर ली है और वेरिएंस पहले आपको अनुमानित वेरिएंस पहले से पता है, यानी आधी से ज्यादा चीजें आपको पता है। तो वहां पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए आमतौर से ये वहां पे इस्तेमाल होता है। दूसरा, किसी ने एक सवाल पूछ रहा था 2 सैंपल के केस में, क्या वो सवाल में पूरा मैं पढ़ नहीं पाया, दोबारा से जरा बतलाइए वो सवाल क्या है। 2 सैंपल सर, के केस। एक क्वेश्चन है सर श्वेता तिवारी का कि सैंपल बिग हो और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एरर हो तो क्या ये सही होगा? सैंपल बिग है और टाइप 1 एरर और टाइप 2 दोनों एरर हैं। दोनों एरर तो होंगी। देखिए, टाइप 1 एरर का मतलब है जो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करती है, अल्फा एरर्स कहलाती हैं। यानी वहां पर आपने जैसे ही आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लिया तो 0.05 अगर लेवल लिया है तो आप 5% एरर, टाइप 1 एरर 5% स्वीकार कर लिया आपने कि आप इनको हम टॉलरेट कर लेंगे। अगर 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है तो आपने वहां पर 1% एरर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये दोनों एरर हमेशा होंगी। इसी तरह से जो आपकी टाइप 2 एरर्स है, ये टाइप 2 एरर n के साइज पर और आपका जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उस पर फिक्स हो जाती हैं, कितने % होंगी। अगर माना सैंपल साइज आपका 500 का है और आप टी टेस्ट लगा रहे हैं तो वो टाइप 2 एरर आपकी फिक्स हो जाएगी। उसकी कैलकुलेशन करने के तरीके अलग हैं, कितनी होगी, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, वो फिक्स हो जाएगी जैसे ही आपने उसको फिक्स किया है। तो ये दोनों एरर्स तो हमेशा होंगी, लेकिन हमको इन दोनों एरर्स को कम से कम पर लाना है। कभी भी आप इसको 0 पे, टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर्स को 0 पे नहीं ला सकते। यू हैव जस्ट टू कंप्रोमाइज। जैसे अब हम कह रहे हैं ना, कोविड के साथ रहना है, हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी और उस आदत को डालने में हमको मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है। ठीक इसी तरह से टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स तो हमारी रहेंगी, हमको इनको रिड्यूस करना है और एक साथ रिड्यूस करने के लिए हमको सैंपल साइज बढ़ाना है। और जैसे ही सैंपल साइज हमारा बढ़ेगा, हमारी टाइप 1 एरर भी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने लगेंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट में एरर्स कम होती है दोनों तरह की, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एरर कम होती है। तो इसलिए इसकी जरूरत है। जी थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट। नहीं, मैं सवाल सवाल ये है कि 2 samples there is independent variables and dependent variables. So what we can use, t-test or chi-square? What should be good? नहीं, देखिए, अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की काई स्क्वायर में बात ही नहीं है। काई स्क्वायर में आपको कैटेगराइजेशन करना है, या तो यूनिवेरिएट कैटेगराइजेशन करना है, यानी एक वेरिएबल पे 4-5 कैटेगरी बना लेनी है, और या बाईवेरिएट कैटेगराइजेशन करना है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है। दोनों में काई स्क्वायर के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो 2 वेरिएबल्स हैं और उनके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये जो कैटेगरी है ये हमारी कैटेगराइजेशन की है, इसमें वेरिएबल और उन कैटेगरी में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में आता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आधार पे हमने कैटेगराइजेशन कर लिया है। जैसे हमने कहा काई स्क्वायर के लिए हमने बॉयज और गर्ल्स का एक लेवल पे बॉयज और गर्ल्स बनाया, दूसरी साइड में हमने माना उनका एकेडमिक अचीवमेंट के आधार पर 4 कैटेगरी बना ली, आउटस्टैंडिंग, गुड, एवरेज और पुअर, और दूसरी तरफ बॉयज और गर्ल्स। अब हमने उनके इसके आधार पर किसी अदर वेरिएबल्स को लेकर, माना उनके एटीट्यूड को हमने देखा, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोविड-19 या कोरोना हमने देखा, एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस, और उसके आधार पे हमने देखा
कि बॉयज में कितने लोगों का ये आ रहा है, वो इसमें कितना आ रहा है, कौन सा कितना आ रहा है, उसको हम बना देंगे वहां पर। तो इस तरह से ये कैटेगरी हम बना सकते हैं। ओके जी जी, थैंक यू सो मच सर। आपने हम पार्टिसिपेंट्स की बहुत सारी को हैंडल किया और आपने सर बहुत सारे हम लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं। आपने सैम्पलिंग टेक्निक कैसी हो, सैंपल कैसा हो, उस समय कैसा स्टेट्स कौन सा लगाया जाए, और डेटा हमारा नॉमिनल स्केल पे हो, ऑर्डिनल स्केल पे हो, उस समय कौन सा यूज किया जाए। आपने पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सबके बारे में डिटेल में बताया। अब मैं हमारे एचओडी सर प्रोफेसर धनंजय यादव सर से कंक्लूडिंग रिमार्क्स और वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। Over to you, sir. ओके, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Please continue. ठीक है, थैंक यू सरोज जी। सर, प्रोफेसर एसपी गुप्ता सर। जी सर, आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। अच्छा सर, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मन की बात केवल अपनी ही नहीं की, बल्कि छात्रों की, रिसर्च स्कॉलर्स की और टीचर्स की, सीनियर गाइड्स की, सीनियर प्रोफेसर्स की, सबके मन की बात बड़े ही साफ लहजे में और बहुत ही आसान भाषा में आपने प्रयोग किया, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और यू हैव टेकन वेरी मच रियल एग्जांपल्स फॉर डिफेंडिंग द आर्गुमेंट दैट यू हैव लेड। इसके अलावा आपने जो अक्सर बात कही जाती थी, हम लोग पढ़ते थे, आज भी बात कहते हैं कि व्हाट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा व्हाई ऑफ स्टैटिस्टिक्स ज्यादा जरूरी है। हम कोई स्टैटिस्टिक्स प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसे क्यों प्रयोग कर रहे हैं उसका जवाब हमको लेना पड़ेगा, और उसके जवाब के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हमारा नेचर ऑफ डेटा किस तरह का है, किस स्केल में है, और वो किन एजम्पशंस को पूरा कर रहा है। और उन सारी एजम्पशंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से रियल एग्जाम्पल्स को लेकर के, आपने कोविड का एग्जाम्पल लिया, आपने और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए। एरर्स क्या होती है, एरर्स कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, टाइप 1 एरर भी होती है, टाइप 2 एरर भी होती है, एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या महत्व है, और जितनी भी इंट्रिकेट चीजें थी उनको आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया। और सर, अभी हम देख रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो मेनी ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स एंड द ऑडियंस, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द लैंग्वेज दैट यू हैव यूज्ड। अक्सर बात आती है, कुछ लोग कहते हैं काइंडली एक्सप्लेन इन इंग्लिश, काइंडली एक्सप्लेन इन हिंदी, क्योंकि हमारा ये ग्रुप जो है वो टोटली इंक्लूसिव है और हिट्रोजिनस है। इसमें सीनियर प्रोफेसर भी हैं और बिगिनर्स भी हैं और रिसर्च गाइड्स भी हैं। तो सबको इस तरह की समस्याएं आती हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स में डेटा तो ले लेते हैं और उस डेटा का प्रयोग आगे किस तरह की स्ट्रेटजी यूज करेंगे, हमारी रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, उन रिसर्च क्वेश्चंस के हिसाब से हमारी हाइपोथेसिस किस तरह की बनेगी। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि रिसर्च हाइपोथेसिस और टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, उसके हिसाब से रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, और उसके आधार पर फिर हम आगे पूरी इमारत जो है रिसर्च की कैसे खड़ी करेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट द रिसर्चर विल हैव टू डिफेंड व्हाटएवर ही हैज डन। और स्टैटिस्टिक्स ऐसा टूल है जो कि हर किसी व्यक्ति को अपनी बात को मजबूती से रखने का प्रयास करता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल में आपने बताया कि ब्लैक लाइज होते हैं, व्हाइट लाइज होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा औजार है जो कि आपको अपनी बात को मजबूती के साथ रखने का अवसर देता है। तो हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके डेटा को किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, और वो ट्रीटमेंट भी हमारा सुटेबल टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी होना चाहिए। हमारी स्टडी किस तरह की है, उसकी क्या डिमांड है, उसकी वेरिएबल्स का नेचर क्या है, और हमारा डेटा का नेचर क्या है, उसके हिसाब से हम पैरामीट्रिक स्ट्रेटजी यूज करेंगे या नॉन पैरामीट्रिक स्ट्रेटजी यूज करेंगे। ऑल दोज इंट्रिकेसीज स्टैटिस्टिक्स सर कहने में और बताने में बहुत क्लिष्ट लगती है, लेकिन उस क्लिष्टता को आपने कितने आसान तरीके से और एक मन की बात को, जो कि हर रिसर्चर के अंदर डाउट रहता है, उस डाउट को बड़े अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए पूरा किया। सर, वी आर हार्टली थैंकफुल टू यू फॉर योर डेलिबरेशन एंड द डेलिबरेशन दैट वाज रीचिंग टू द हार्ट, सबके दिल में पहुंचा। और वो ऑलमोस्ट सभी को जिज्ञासा रहेगी कि कभी हम आपके पास रियल एग्जाम्पल लेकर के पहुंचे और उसमें भी बात करें कि हाँ, हम इसको यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो आप और
सभी विद्यार्थी वेलकम हैं। Okay, और sir. Sir, बहुत कम समय था तो इसलिए, और दूसरा कागज पेन का इस्तेमाल नहीं करना था, तो मैंने अपनी भाषा को बहुत ही सरल और वैसे रखा। आपको पसंद आया? आपके नहीं साथ सर, your all deliberations reach to the heart of the audience. और हम कमेंट्स देख रहे थे, सीनियर टीचर्स के भी थे, रिसर्च स्कॉलर्स के भी थे, सभी थे, एंड ईच वन ऑफ देम वर वेरी मच हैप्पी। और जो भी आपने जो डाउट्स थे, टेम्पलेट के डाउट थे और जो डाउट्स थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर दिया। और डाउट्स तो सर आते रहेंगे, जितना हम अंदर जाएंगे क्वेरीज आएंगी। और उम्मीद करते हैं सर कि फ्यूचर में जब कभी भी डिपार्टमेंट को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, डिपार्टमेंट हैज बीन योर्स। हम लोग जब एंट्री किए थे, यू वर टीचर देयर, उसके बाद आप आगे बढ़े, आपके साथ एडमिशन का काम किया हम लोगों ने, यू वर डायरेक्टर, एंड देन यू वर एलिवेटेड टू द डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन इन UPRTOU। तो सारी कैपेसिटीज में आपका जो एकेडमिक डेलिवरेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन कितनी सरलता के साथ आपने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। Really, we are very much thankful to you. The department is thankful to you for extending your support on this venture. Thank you again. बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस को विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को हमको आगे बढ़ाने के लिए मोटिव दिया। और नेचुरली देयर फीडबैक विल गाइड अस इन फ्रेमिंग आवर फ्यूचर प्रोग्राम्स एज वेल। और ऑडियंस के लिए एक सूचना मैं देना चाहूंगा कि दिस सीरीज ऑफ वेबिनार will go on. Therefore, they must visit the page, Facebook page, as well as the page on the website of University of Allahabad, so that they may be acquainted with our future series, which is going to be held in near future. With these words, I hand over the mic to Dr. Saroj Yadav, the convener of this webinar. Dr. Saroj. Thank you, sir. Thank you, Professor Dhananjay Yadav, sir, for your direction and valuable suggestions for organizing these webinar series. And thank you, Professor S.P. Gupta, sir. Thank you, all the participants. Thank you all. Okay, welcome. Thank you, sir. हो जाऊंगा मैं? हाँ, बिल्कुल 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 सर। आप हमेशा साथ रहेंगे हम लोग के। ठीक है। Though virtually you are living, you will be with us.